was a very, very important story we feel we need to highlight to our viewers. In yet another case of sheer negligence and apathy in Mumbai, two young boys drowned in a 10-foot deep water-filled pit. The incident was reported in South Mumbai's Antop Hill area, posh area in Mumbai, where a 9-year-old Shivam Jaiswal and an 11-year-old Yash Chandravanshi had gone to play near the water pit. By the time the two children were pulled out of the pit and rushed to a hospital nearby, they were declared dead. Now, as per residents, the pit was dug up for repair work around 2 weeks back and was left unguarded without any barricades or warning signs since then. The contract for the repair work was given by the Central Public Works Department as per the police. While cases of accidental deaths have been registered, no action has been taken against the contractor till now. Disha visited the spot earlier today. She sends us this report. बच्चे आए कैसे नहीं आए हमें पता नहीं है, लेकिन वो किस तरह गिरे उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ग्राउंड है, यहाँ बच्चे खेलते भी हैं, यहाँ लोग बैठे भी रहते हैं, यहाँ टाइम पास भी करते रहते हैं। तो बच्चे किस तरह यहाँ गिरे हैं ये किसी को आइडिया नहीं है। और जो बैरिकेड की आप बात कर रहे हो, ये कल हादसे के बाद में ये कल लगाया गया है। देखा नहीं, हम तो कल पता पड़ा कि बच्चे डूब गए करके। हम तो कभी आया नहीं इधर। तो पूरी तरह से ये खुला का खुला था। ओके, पूरी तरह से ये खुला था। हाँ, खुला ही पड़ा है ना, अभी कल ही बात है ना वो। Okay, Mruna also spoke to the relatives of one of the deceased. The father of the victim, Shivam Jaiswal, called for a probe in the matter and has urged authorities to take action against all those who are responsible. Let's listen in. ये कैसे हुआ कल और कभी मतलब आपको कब पता चला ये? ये घटना कम से कम 3-3:30 बजे की बात है और ये मुझे कम से कम 4:30 बजे पता चला इसे घटना ये। लेकिन मेरा लड़का यहाँ पर मुश्किल आ सकता है, यहाँ बोले तो इतना यहाँ आने का कुछ सवाल ही नहीं, कुछ घटना की जांच होनी चाहिए, यहाँ पर कैसे हुआ क्या हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं है। इनकी माँ का भी बहुत बुरा हाल है, जिस कंडीशन में है इनकी माँ का आप जाके देखेंगे ना तो बार बार बेहोश हो जा रही हैं, उठ नहीं पा रही हैं। जो घर का हालत है आप लोग जाके देखिए, उनकी माँ का जो कंडीशन है, और वो जो दूसरा बच्चा उसके माँ बाप दोनों बेहोश हैं, कोई देखने वाला नहीं। इसका तो सही देखा ना, सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सर, पुलिस के अलावा कोई आपको अधिकारी कोई मिलने आया है CPWD से या कोई भी और अधिकारी? ABC वाला आया था। ABC वाला आया था। नहीं, न्यूज़ वाले नहीं, कोई अधिकारी मतलब ऑफिशियल कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए कि किस तरह से? कोई नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं आया था, कोई नहीं आया था मैडम। सर बता रहे हैं कि ये बैरिकेडिंग पहले नहीं की गई थी। कुछ नहीं, ये तो कल होने के बाद, सारा हादसा होने के बाद ही ये सब कराया गया है। बाकी इधर कुछ नहीं, पूरा ओपन था ये। ऐसा 15 दिन से नहीं, कब से है पता नहीं, लेकिन ये ओपन ही पड़ा हुआ था। ये तो कल जब हादसा हुआ तो उसके बाद ये सब कि आगे कुछ बात ना बने, लोगों को दिखाने के लिए ये पतरा वतरा लगाया गया है। बाकी ये सब कुछ नहीं था, ये सब कल का कल रात में हुआ है सब। Okay, my colleague Disha joins us now. Disha, a few kilometers from where you're at is the Bombay High Court, where the nation's attention is transfixed to find out what is happening in a drugs bust case. But with you right now are the heartbroken parents of a young boy whose only fault was that he was playing out in the open at a pit that was left unguarded, unbarricaded for weeks, despite the obvious danger that it posed to anybody there. Well, Aarti, for any family who's watching this story right now on Mirror Now, because this is the only channel that is covering this news, because here we are talking about two very young children, aged 9 and 11 years, who lost their lives after falling into a 10 feet long water pit. This is something nobody accepted, not even expected, not even their own family member. Yesterday, both of the kids, when they went out from the house, they said that they are going to play and they'll come back soon, but they did not come back. And that is the loss that the parents are still grieving. Let's first directly speak to the parents. I do not want to make them wait for long. Here first, let's just speak to victim Shivam's father. It's been more than 24 hours since this incident has happened, and all he's doing, he
not also received his son's body from the hospital. He's here outside the Antop Hill police station only requesting for an FIR to be registered against the contractor, because this is due to the negligence that he has lost his son. सर शुक्रिया हमारे चैनल पे बात करने के लिए. सबसे पहले बहुत बहुत सॉरी आपके साथ जो आपके और आपके फैमिली के साथ हादसा हुआ. ये कोई भी नहीं सोच सकता था कि इस तरह से आपके बेटे की जो है वो जान जाएगी किसी की लापरवाही की वजह से. आपका क्या कहना है सर? मेरा यही कहना है कि जिसने ये काम किया है, वो डैम खोदा था, वो डैम के लिए पतरा नहीं लगाया था, उसकी वजह से मेरा बच्चा चला गया. अगर वो डैम खोल के उसने साइड में पतरा वतरा मारा तो आज मेरा ये दिन नहीं देखना पड़ता. मेरा बच्चा मेरे सामने होता आके. ये मतलब कि कंस्ट्रक्शन वाले की गलती है, उसकी वजह से लापरवाही से मेरा बच्चा चला गया आज. मुझे न्याय मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं है. जिसमें जो जो उसी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए. बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बस. And we'll also, Aarti, speak to second victim, Yash's father. He's also here outside the police station only demanding an FIR to be registered. सर शुक्रिया हमारे चैनल पे बात करने के लिए. आपको भी वेरी सॉरी आपके साथ और आपके फैमिली के साथ जो हादसा हुआ. इतना छोटा बच्चा ऐसे क्या मतलब आपको, क्योंकि वो गड्ढा बहुत दिन से खोदा नहीं था. गड्ढा खोदा था, इन लोगों ने चारों बाजू बाउंड्री नहीं किया, इसी काम के ओपन छोड़ दिया. और आज मेरा बेटा एक ही बेटा था जो चला गया दुनिया से, और ये लोग के लापरवाही की वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं. मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से कम इस पर कार्रवाई होवे और जो बिल्डर है इसको अरेस्ट किया जाए कि आगे से कोई बच्चा कोई किसी का नुकसान नहीं. हमारा बच्चा गया, हमारा कलेजा फट रहा. आज क्या हम पे बीत रहा. 24 घंटे से ऊपर हो गया है, कोई सुनवाई नहीं है अभी तक की. हम लोग पड़े हुए भूखे प्यासे. कम से कम बच्चा तो चल गया, मगर अदर किसी का बच्चा ना जावे. और सही ढंग से काम जो गड्ढा है उन्हें पत्थर मार कर काम किया होता और पानी को निकाल दिया गया होता तो हमारा बच्चा आज नहीं बढ़ता, आज हमारे सामने खेलता. यही हुआ है, और क्या बोलूं. शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ बात करने के लिए. आरती, आई ऑल्सो वांट टू स्पेसिफिकली पॉइंट आउट दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वाज गिवन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. सो दे हैड अपॉइंटेड अ कॉन्ट्रैक्टर टू do the water pipeline repairing work inside that particular society. So let's just speak to another relative and just ask them about the status of the probe, because all the parents you see are over here, they have not gone to the hospital to take their children's body, but they are demanding justice, that at least an FIR should be registered, which have not been registered yet. Sir, आप बताइए, आप लोग बहुत पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, FIR भी अभी तक ऐसा सुनने में आया कि दर्ज नहीं हुआ है. क्या कहना है पुलिस का, आप यहाँ पे आए हैं? दरअसल हम लोग जब से ये हादसा हुआ कल यहाँ पर हम लोग 6-8 बजे के शाम से आ गए हैं. तो ये पुलिस वाले सर हमको बोल रहे हैं कि आपका रजिस्टर मतलब आप उनके ऊपर कार्रवाई होएगी, लेकिन जब तक PM रिपोर्ट नहीं आएगा, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आएगा, तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते. तो हम लोग को आश्वासन दिया, आप लोग जाओ, सुबह PM रिपोर्ट आएगा, फिर आप लेके आओ, हम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे. सुबह हम लोग ने वो रिपोर्ट लाके, मतलब हमको रिपोर्ट नहीं, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में ही रिपोर्ट आया है. वो रिपोर्ट हम लोग देने के बाद हमको सुबह से यही आश्वासन दिया जा रहा है कि रिपोर्ट आ गया है, आप लोग जाओ, आप बॉडी का सब काम करके आ जाओ, हम आपको देते हैं. ये हमको 2 बजे से बोला गया. तो हम लोग क्या बोले, जब तक आप हमको रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक सर हम नहीं जाएंगे. बोले अच्छा रुको, आप 10 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, हम आपको देते हैं. 10 मिनट 5 मिनट करते करते शाम को 6 बज गए. 6 बजे, अभी आधा घंटा पहले भी हमको बोले एक काम करो, आपको बहुत लेट हो रहा है, आप जाओ और आपका सब आप काम करके आ जाओ. नहीं बोले कि कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR कुछ दर्ज किया, बोल रहे तो, लेकिन अपने हाथ में तो कुछ नहीं, बोलने को तो बोल रहे हैं. जब हमारे हाथ में कुछ लिखित मिलेगा तभी तो हम जानेंगे. नहीं बाद में बोलेंगे, कल आने के बाद बोले कल वो साहब ड्यूटी पे चले गए, छुट्टी पे है, 8 बजे आया, उनका ड्यूटी खत्म हो गया. हम इसके लिए हम लोग, हमारा बच्चा गया है, हमारा बच्चा गया तो हम ये सोचते हैं कि बच्चे के साथ न्याय मिले. उसके साथ अगर एक FIR का कॉपी मिल जाता तो हमारे बच्चे का जो आज अभी बॉडी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है वो कम से कम वो अपनी जगह पे पहुंच तो जाता था. लेकिन इन लोगों के लापरवाही समझे या जो भी समझे सर, अभी इन लोगों के वास्ते हमारा इतना टाइम भी गया है और अभी तक हमको कॉपी नहीं मिला. और हम लोगों ने बोला है जब तक हमको हाथ में कॉपी नहीं मिलेगा, 1 नहीं 2 दिन भी लग जाएगा, तो भी हम लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि वो वाटर पिट जो है काफी दिनों से खुला था, उसको बैरिकेटिंग भी नहीं की थी, कल हादसे के बाद हुआ था.
हाँ, वो पूरा ओपन है, वो आज नहीं कम से कम समथिंग 2 महीने से ऐसे ओपन पड़ा हुआ था। वो ये लोग जैसे कोई हादसे का वेट कर रहे थे कि जब तक कोई हादसा नहीं होएगा तब तक हम करेंगे नहीं। हमारे 2 बच्चे, मासूम बच्चे 9-10 साल, ये भाई साहब का तो खाली एक ही बच्चा है जिसका घर का चिराग डूब गया। आज उनके घर में कौन है, मतलब आगे आने वाले भविष्य का उसका कौन जानकारी देखने वाला है। जिसका 10 साल 11 साल का बच्चा चला जाएगा, उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या जाएगी। एक ही लड़का था उनको, और ये दूसरे भाई साहब को तो 2 लड़के, एक लड़का गया, एक लड़का जाए या 2 लड़का जाए। ये किसी की लापरवाही, मतलब ओपन गड्ढा का मतलब वेट किया जा रहा था कि कोई हादसा होवे फिर उस पर कार्रवाई किया जाए। और जब कल ये हादसा होने के बाद उन लोगों ने तुरंत उसको बैरिकेड किया ताकि दिखे कि हमने किया है। इसके लिए हमारे पास पहले का भी फोटो है, मैंने आपको भी सेंड किया है, पहले का भी फोटो है, अभी का भी फोटो है। ये लोग हादसे का वेट कर रहे थे। हादसा होने का कारण वो जो बीएमसी का जिसने भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। समझ रहे हैं? This is the demand, Aarti, of the parents as well as everyone who has witnessed that particular incident, because Central Public Works Department had given that contract. What we know that the FIR has not been registered yet against the contractor. It's been more than 24 hours of the incident, and the parents are here just grieving the loss, and they are simultaneously asking for the justice as well. So this is Disha, matter of concern. This is the apathy here that we are talking about. No, Disha, a 9-year-old Shivam and 11-year-old Yash, these are not children of any celebrity. These are not children who've had the privilege of going to the best of schools, receiving the best of education. These are unfortunately just statistics in civic apathy. In their lives are almost treated as completely dispensable. We've been seeing them wait outside the police station. There's no action that's being taken. Just for our viewers who are joining us this evening, Disha, tell us a story of these 2 young boys whose story should probably be told far and wide. The story of these 2 boys who are paying the price for the fact that they don't come from a privileged background. Well, certainly you rightly pointed out, Aarti, if this incident would have happened, we do not really wish so, but if this incident would have happened to a celebrity son, then definitely there would have been action, not within 24 hours, but within 2 hours for that matter. But here, just because the families are from poor background or from middle class background, that is the reason it is taking so long. And these children had certain ambitions. I remember talking to the fathers earlier today where, you know, the sons had something big to dream about. We'll just try and speak to them. आप सब मुझे सुबह बता रहे थे कि आपके बेटे का बहुत बड़ा सपना था, उसको ये बनना था, आगे जाके वो बनना था। आपसे क्या डिस्कस करता था? हाँ, बहुत सपना बड़ा था उसका, लेकिन अभी ऐसा हादसा हो गया। अभी क्या सब सपना ही उसका टूट गया। अभी से बड़ा हो गया, बोलता मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, बहुत बड़ा ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन उसका सब सपना टूट गया। मेरा भी एक ही 2 लड़के थे, एक ही लड़का मेरा खलास हो गया। बोलो तो मुझे बहुत बड़ा दिल में वो लग रहा है, लेकिन बोलो क्या बोलो भी बताओ। सर, आपके बेटे का भी कोई सपना था? हाँ, वो मेरी एक बड़ी लड़की और डॉक्टर बनना चाहती है, अभी 10th में, और लड़का 5 में था इंग्लिश से। वो बोला पढ़ लिख के बड़ा ऑफिसर बनूंगा पापा, और नहीं रहा दुनिया में। हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। एक ही बेटा था, 3 लड़कियाँ थी मेरी। 3 लड़की, बड़ी वाली लड़की 10th में है, एक लड़की 7th में, एक लड़की 3rd में, और लड़का 5 में था। लड़का चला गया, बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, किसको कलंक लग गया जिंदगी भर। क्या कब बताऊंगा। मैं यही मीडिया से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उस बिल्डर पे कार्रवाई हो, यही मेरी प्रार्थना और विनती है आपसे। So, Aarti, we are not going to, ask them any more questions because we are seeing the state and situation of these parents. But like you heard from them, both the children had an ambition to become a big personality when they grow up, but just because of someone's negligence, which could have been easily avoidable, this is what they are suffering right now, and this is clearly a civic apathy that even after 24 hours, we are not even seeing an FIR being registered against a contractor. Only 2 accidental death cases have been registered so far, but beyond that, no action at all. Well,
Disha, thank you so much for that. Our hearts go out to their grieving families. It's an unimaginable loss. It's a loss that nobody has to or shouldn't ever have to face. And we at Mirror Now are going to continue to keep our focus on this. We're going to continue to demand accountability from the agencies that have allowed, and this is the murder of 2 young children, which is what has happened. And we're going to continue our focus on this even on the urban debate tonight at 9 p.m. Disha, thank you so much for that. We're slipping to a short break now, but stay tuned.